Hello everyone, I am Sukhpreet Kaur, Assistant Professor at Axis Institute of Technology and Management. So today we are here to discuss about very important topic which is power theft. You all might be aware about such a big problem of power theft which India is facing nowadays. Theft. If we talk about theft, what is theft? अगर हम किसी की भी चीज़ किसी की कंसेंट के बिना ले लेते हैं then this process is known as theft. In the same way, when we steal the power without the confirmation from the authorities, without telling to the authorities, then this is known as power theft. As you can see in the picture, this picture depicts it all. This picture is about power theft. Here a man is standing who is trying to tap the lines from the pole. What is the concern? Why is he doing so? He is just trying to tap the lines in order to save his utility bills. I think this is the major reason why we people are doing theft nowadays. So energy resources play a very important role when we talk about power because energy resources से ही हम power को generate करते हैं. It depends on us कि हम उन resources को कैसे utilize कर रहे हैं. So before moving further, I would like to discuss few things about energy resource. So now when we talk about what is an energy resource, कोई भी ऐसा source जिससे हमें energy मिलती है, then that is known as energy resource. As it is written, an energy is something that can produce heat, power life, move objects and produce इलेक्ट्रिसिटी. अब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के बहुत सारे तरीके हैं. वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय विंड, वी प्रोड्यूस इट बाय वाटर, वी आर producing it by n number of reasons. So now if we talk about energy resources, then basically the energy resources are classified in a broader manner. So here we come with the classification of energy resources. If we talk about classification of energy resources, basically आप लोगों ने सुना होगा that the energy resources are type of renewable, non-renewable, conventional, non-conventional. But if we go into deeper inside, then the energy resources are classified based on traditional use and secondly based on the long-term availability. Now if we talk about the long-term availability first, then the resources are classified as renewable and non-renewable. Renewable resources of energy are very simple. It means the resources of energy which can be renewed over a short interval of time, जिनको हम renew कर सकते हैं easily, those resources are known as the renewable resource of energy. For example, wind, solar energy, etc. Now, if we talk about non-renewable resources of energy, then those resources जिनको बहुत time लगता है renew होने में. For example, fossil fuels. As fossil fuels are made up from the dead decay of plants and animals after millions and millions of years. So this is a big process. And usually what people focus on is not to waste the non-renewable resources of energy. But do you think that is it right? Now before making clear regarding this question, मैं आप लोगों को conventional और non-conventional resources के बारे में बताती हूँ. Usually हम देखते हैं कि हम renewable resources को और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को एक साथ लिखते हैं. जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल में भी देख पा रहे होंगे, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं. मैंने इनको जानबूझ के सिमिलर लिखा है टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज कैसे सिमिलर है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. अगर ये दोनों सेम होते तो इनको हमने सेम कैटेगरी में ही रख दिया होता, लेकिन हमने इसको यहाँ पे ट्रेडिशनल यूज में किया है और वहाँ पे हमने इसको अवेलेबिलिटी के फॉर्म में किया है. बेसिकली जब हम लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, दैट इज कि वो कितने ड्यूरेशन में रीन्यू हो रहा है. अगर हम ट्रेडिशनल, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिशनल? ट्रेडिशन इज समथिंग जो पहले से चलता चला आ रहा है. सो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज
जिनको हम काफ़ी टाइम से एज सच यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे कि कोल को हम उसी तरीके से यूज़ करते हैं जैसे वो होता है, जैसे उसको प्रोड्यूस किया जाता है। पेट्रोल को भी हम वैसे ही यूज़ करते हैं, एंड सेम इज़ द केस विद इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर हम अब नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो ये वो एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो अब करेंटली यहाँ पे हम लोग अपनी करंट टेक्नोलॉजीज़ के साथ जिनको यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स कि जैसे विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, और अगर हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखें देन दैट इज सोलर एनर्जी। आज के डेट में अगर हम सोलर एनर्जी को देखें, या इट मीन्स द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन। अगर हम सन की एनर्जी से देखें देन वी आर यूजिंग सोलर पैनल्स एंड वी आर receiving the energy from the sun, we are storing it, and then we are doing n number of projects on it. So this is a basic difference, यानी कि जिन्हें हम करंट प्रैक्टिस में लेके आ रहे हैं और अब हम उसे एक efficient फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। इन शॉर्ट, हम जब रीन्यूएबल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करते हैं कि हम अपनी नॉन रीन्यूएबल की रिसोर्सेज को की यूटिलाइजेशन को कम कर सकें, इट मीन्स दैट द रिसोर्स इज non-conventional. This is the reason that why the non-conventional and renewable resources are kind of same. So I hope this difference is clear to you all. Moving to the next thing now, that what is power theft. Now if suppose the power is transmitted from say X station, किसी भी X station से हमने power को transmit किया, transmit होने पे there are n number of losses, like there are corona losses, there are copper losses, there is proximity effect जिसकी वजह से कुछ losses हो जाते हैं। Now this is the process जहाँ पे technical loss हो रहा है, यानी कि अगर हम loss की बात करते हैं then loss is कि वो energy lost हो गई। एनर्जी लॉसेस जो होते हैं वो टेक्निकल फॉर्म में भी हो सकते हैं और वो नॉन टेक्निकल फॉर्म में भी हो सकते हैं। अगर ट्रांसमिशन होते टाइम रिसीविंग स्टेशन के बीच तक कुछ भी पावर लॉस हो जाती है, इट मीन्स कि यहाँ पे लॉसेज हुए हैं। अब वो एक नॉर्मल टेक्निकल लॉसेस के फॉर्म में भी हो सकती है और एक नॉन टेक्निकल लॉसेस के फॉर्म में भी हो सकती है। अगर वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हो रही है, इट मीन्स इट इज़ अ टेक्निकल लॉस, एंड अगर वो ह्यूमन मेड है, it is made by human, then it is non-technical loss, and this non-technical loss is power theft. Like it is written, theft done during the power transmission by illegal tapping. Not only illegal tapping, there are n number of process. Tapping is a simplest process. अगर हम किसी भी process में जाएं, there are n number of defects or n number of ideas that people are doing nowadays in order to do the power theft. Tapping of power lines to divert the power to required destination, यानी कि डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले ही पावर का उसके बीच में लॉस हो जाता है, एंड दिस लॉस कैन बी in the terms of technical losses or in terms of power theft. So now whenever anybody does the theft, in that case अगर हम देखें तो this is a criminal practice, and since it is a criminal practice then it is a crime and is punishable in the form of fines or the incarceration. Incarceration बहुत worst cases में होता है when the theft is in the huge amount. Usually यहाँ पे imprisonment रहता है, और वरना फिर usually authorities को fines देने पड़ते हैं। इंडिया में अगर देखा जाए then this is a big problem. अब यहाँ पे हम लोग एक सर्वे देखते हैं, बहुत ही नॉर्मल सा। यहाँ पे आप लोग 3 कंट्रीज़ के नाम देख पा रहे हो जहाँ पे मेजर पावर लॉस होता है। फर्स्ट इट इज़ इंडिया, देन इट इज़ ब्राज़ील, एंड देन इट इज़ रशिया। आप लोग देख रहे हो इंडिया में $16.2 बिलियन का लॉस होता है, ब्राज़ील में $10.5 बिलियन का लॉस होता है, एंड रशिया में $5.1 बिलियन का लॉस होता है। नाउ दिस इज़ अ बिग मैटर ऑफ कंसर्न। अब अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करते हैं देन टॉक अबाउट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अगर हम इंडिविजुअली लॉसेस देखते हैं देन इट इज़ 2.8 बिलियन पर ईयर। सो दिस इज़ अ बिग अमाउंट एंड दिस नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। अब इसमें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं अगर हम पावर थेफ्ट की बात करते हैं। द फर्स्ट इज़ एनर्जी डिमांड एंड द सेकेंड इज़ एनर्जी सप्लाई।
अगर पावर थेफ्ट हो रहा है देन देर इज़ अ रीज़न कि कहीं ना कहीं लोगों की डिमांड्स फुलफिल नहीं हो पा रही है. दैट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से पावर थेफ्ट लोग कर रहे हैं. उससे पहले हमें ये दो टर्म्स को क्लियर करना होगा. दैट द वन इज़ द पावर डिमांड, एनर्जी डिमांड एंड द एनर्जी सप्लाई. व्हाट इज़ एनर्जी डिमांड एंड एनर्जी सप्लाई? द सप्लाइड एनर्जी इज़ द वन जो कि मार्केट में हम लेके आए हैं, और जो हमारी डिमांड थी यानी कि जितनी एनर्जी हमने परचेज करी, दैट इज द एनर्जी विच इज डिमांडेड. द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी सप्लाइड इन द फ्लो ऑफ द एनर्जी ब्रॉट ऑन टू द मार्केट. And the quantity of energy demanded is the amount of energy purchased for a particular period of time. क्या ऐसा होता है कभी कि जितनी एनर्जी हमने परचेज करी है उतनी हम मार्केट में ले आए? अगर ऐसा होता तो यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस बिल्कुल भी नहीं होता. तो बेसिकली अगर देखा जाए, अगर हम पावर थेफ्ट की बात करते हैं तो ये भी एक नॉर्मल मार्केट स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है. इफ़ द डिमांड इज़ मोर and the supply is less, in that case prices will increase. So this is basically the thing जिसको हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है. तो इसके लिए जब हम बात करेंगे, जब हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की. दैट व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज बेसिकली एन अप्रोच जहाँ पे हम ये नोटिस करते हैं कि हम एक ऐसा ये प्रोसेस है जिसमें हम ये चेक करेंगे कि हम रिसोर्सेज को कितने एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं. एफिशिएंटली यूज़ करना एज इन कि हम उसको इस तरीके से यूज़ करें कि उसमें हमारी नीड्स भी फुलफिल हो जाएं और उसमें कुछ हम मिनिमम टू मिनिमम लॉसेस रखें, एंड एट द सेम टाइम हम अपने फ्यूचर जनरेशन की भी नीड्स को कंसर्न करें और उसके लिए एनर्जी को कंजर्व करें. This means sustainable development is an approach where we utilize the resources in such a way that we are able to fulfill our needs efficiently and at the same time we are able to conserve the things for the future generation. तो जब भी हमें एनर्जी डिमांड सप्लाई की बात करेंगे तो उसमें ऑब्वियसली एनर्जी रिसोर्सेज का रोल आएगा, और जब हम एनर्जी रिसोर्सेज का रोल आएगा तो हमें इस अप्रोच को अपने माइंड में हमेशा रखना होगा. Moving to the next most important topic, which is energy crisis. What is energy crisis? Basically this is the main bottleneck in the supply of energy, because इसी की वजह से, energy crisis की वजह से ही लोग पावर थेफ्ट करते हैं, रिसोर्सेज का मिसयूज़ करते हैं. तो अगर कभी भी सप्लाई कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म में होगी, यानी कि अगर कम सप्लाई होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि लीडिंग टू द डिमिनिश्ड अवेलेबिलिटी, एंड दिस विल लीड टू द इंक्रीज इन प्राइजेस. अगर बहुत ही कंस्ट्रिक्टेड सप्लाई है तो इससे सिर्फ प्राइजेस ही इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, बिकॉज कंज्यूमर को हाई प्राइजेस देने में बहुत प्रॉब्लम है. एवरीवन इज नॉट दैट मच केपेबल कि वो हाई प्राइजेस पे कर सकते हैं. तो यूजुअली कंज्यूमर क्या करता है, वो ज़्यादा ईजियर मेथड को ऑप्ट करता है, एंड दिस ईजियर मेथड इज डूइंग द power theft. So there are n number of reasons that of energy crisis. अगर हम सबसे पहले कुछ मेन इंपॉर्टेंट रीजंस को गो थ्रू करें, द फर्स्ट वन इज ओवर पॉपुलेशन. नो डाउट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ वेरी हाई, जिसकी वजह से लोगों के साथ एनर्जी क्राइसिस है. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी वेस्ट, अ लॉट ऑफ एनर्जी इज बीइंग वेस्टेड एट एनी पॉइंट. अगर वाटर टैप्स खुले हैं देन नोबडी इज कंसर्न्ड. अगर वाटर टैप्स में कुछ टेक्निकल इशू है, नोबडी इज कंसर्न्ड. पावर प्लांट कमीशन डिलेज, इसका तो बहुत ही बुरा सिनेरियो है, बिकॉज पावर प्लांट्स के एंड से ही वहाँ पे कुछ प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है जिससे कि एडिक्वेट सप्लाई मिल सके. अनयूज्ड रीन्यूएबल ऑप्शंस, यानी कि नॉन कन्वेंशनल यूजेस हम लोग बहुत ही ज़्यादा कम कर रहे हैं. वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द थिंग्स जिससे कि हम ज़्यादा रीन्यूएबल एनर्जी का यूज़ कर सकें.
पुअर डिस्ट्रीब्यूशन, देयर आर फ्यू स्टेट्स इन द कंट्री जिनमें बहुत ही ज़्यादा एक्सेस एनर्जी सप्लाई है और फ्यू स्टेट्स इन द कंट्री जो जिनका बहुत बुरा हाल है, जहाँ पे एनर्जी है ही नहीं, और दोज आर द कंट्रीज जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से लोग पावर थेफ्ट करते हैं। मेजर एक्सीडेंट्स ड्यू टू कैलामिटीज़, नेचुरल कैलामिटीज़। अगर हम लोग नेचुरल कैलामिटीज़ की बात करते हैं, यानी कि अगर हम बहुत ही एक्सेस फ्लड की बात करते हैं, ड्राउट की बात करते हैं, इनकी वजह से भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे पावर जनरेशन में प्रॉब्लम्स आती है। वॉर्स एंड अटैक, जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं। These are the personal grudges, it varies from country to country. Now, politics, border obstruction and lack of storage. There is no proper storage in India जिससे कि हम energy को store कर सकें. Though India has increased and improved in a bulk number, अगर हम storage की बात करते हैं, there are n number of storage plants which are developed, but still we are lagging behind many of the big countries. Overconsumption, yes, this is again a very important topic, and if we are not able to control the overpopulation, then we will not be able to control the overconsumption in any case. I hope अब आप लोगों को clear हो गया होगा that it is basically due to energy crisis, जिसकी वजह से लोग power theft कर रहे हैं. Now moving to the important topic, that is meaning of power theft. What does menace means? Menace means a threat or a danger. What is a threat or a danger? किस चीज़ के threat और danger की हम बात कर रहे हैं? We are talking about the threat which is due to power theft, because अगर day by day हम इसी तरीके से power theft करते जाएंगे, so this will be a big problem. देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है, the money power which is involved in the game of power theft is beyond imagination. Which is the money power? हम किस मनी पावर की बात कर रहे हैं यहाँ पे? बेसिकली अगर हम देखते हैं, अगर हम n नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, अपने घरों की ही अगर हम बात करते हैं, तो वो जो हम यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, हम उस यूनिट्स के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को उसका बिल पे करते हैं. वी हैव टू पे आवर यूटिलिटी बिल्स. जब हम लोग इसकी बिलिंग करते हैं, देन वी अलॉन्ग विद दैट वी पे द टैक्सेस टू. व्हाट डज द बिल एंड द टैक्सेस rely on? Basically this adds up to the Indian economy. अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इंडियन इकोनॉमी को अपनी ग्रोथ के लिए कुछ टैक्सेस चाहिए, कुछ बिल्स चाहिए जो कि यूज़र कंज्यूम कर रहा है और उनको पे करने हैं. बट क्या आज के टाइम में हर एक बंदा अपने टैक्सेस पे कर रहा है, हर एक बंदा अपने बिल्स पे कर रहा है? नो. They are going to for the more simpler method. So this is the reason, because यहाँ पे money power लिखा है. Because if the economy of the country will be reduced, then it is going to affect the entire GDP across the world. So there is a problem of power theft all over the world, and like other commodity, electricity is also stolen. अब अगर हम यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सा सिनेरियो देखते हैं, जहाँ पे हमने देखा है एक सर्वे ऑफ 2004. द टोटल एनर्जी लॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड इज 1148.58 बिलियन यूनिट्स इन 2004. ये जो ओवरऑल वर्ल्ड का एनर्जी लॉस है, दिस इज द कंजम्पशन ऑफ यूके, कंजम्पशन ऑफ जर्मनी एंड कंजम्पशन ऑफ जापान. These are the countries. अगर हम ये इनका तीनों का कंजम्पशन कैलकुलेट करते हैं तो इतना पूरे वर्ल्ड में लॉस हो सकता है. यानी कि अगर ये जो लॉस हुआ है इसको हम देखते हैं, ये तीन कंट्रीज़ अपनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट इस लॉस से कंप्लीट कर सकती हैं. सो दिस अगेन इज़ अ बिग प्रॉब्लम. अब अगर हम लोग इंडिया में देखते हैं तो जो बेसिक लॉस है दैट इज़ इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. Agricultural sector, why we are talking about agricultural sector? Because the primary occupation of India is agriculture. Most of the population, around 60% of the employment is in the agricultural sector, and we usually see that agricultural lands are situated in the outskirts. Usually होता क्या है, या तो वहाँ पे connections release नहीं होते हैं, लोगों के पास उतनी facilities नहीं होती हैं जिससे कि वो agriculture की basic needs को fulfill कर सके, जैसे कि irrigation purpose के लिए जहाँ पे उन्हें electricity की major requirement होती है.
लेकिन यहाँ पे होता ये है कि अगर हम फार्मर की फाइनेंशियल कंडीशंस को देखें, वो भी इतनी कैपेबल नहीं है। अगर हमने गवर्नमेंट ने अपने कनेक्शंस रिलीज भी किए हैं, उस केस में भी दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि फार्मर इसके बिल्स पे कर सके, तो वो ज़्यादा ईजियर मेथड की तरफ जाता है। व्हाट ही डज इज़ वो पावर थेफ्ट करता है। इन द सेम इज़ द केस विद द पब्लिक सर्विसेज। इफ़ वी टॉक अबाउट the schools, the colleges, the banks, which are the public places, जहाँ पे हमें पता है कि electricity plays a very important role, जहाँ पे electricity के बिना हम survive ही नहीं कर सके, तो जहाँ पे maximum utilization होगा energy का, theft सिर्फ उसी जगह पे होगा। Power theft is a crime in the terms of cost and safety because the thieves are outsmarting. Outsmarting means thieves के पास कुछ ऐसे out of the box ideas as in वो ideas जिनको समझने में हमें बहुत time लगता है, and by the time the government is able to identify कि लोगों ने defect कैसे किया है अपने meters में, लोग कैसे power theft कर चुके हैं, उस जब तक वो identify होता है तब तक already काफ़ी हद तक power theft हो चुका होता है। तो अब अगर हम एक और सिनारियो देखते हैं, आउट ऑफ द टोटल पावर थेफ्ट 80% इज फ्रॉम द ड्वेलिंग प्लेसेस एंड 20% ऑफ द टोटल पावर थेफ्ट इज फ्रॉम द कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रेमाइसेस। दिस मीन्स दैट जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, पावर थेफ्ट वहीं पे सबसे ज़्यादा है, बिकॉज ये हम जैसे ही लोग हैं जो पावर थेफ्ट करते हैं, ये हम अपनी ही रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए करते हैं। इट्स नॉट लाइक ऑलवेज द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रेमाइसेस जहाँ पे पावर थेफ्ट सबसे ज़्यादा होगा। यूजुअली इट इज़ मैक्सिमम इन द ड्वेलिंग प्लेसेस। नाउ फर्दर इफ वी मूव अबाउट व्हाई डू पीपल पिल्फर एनर्जी, अब हमें ये तो मालूम पड़ गया कि दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम। So what are the basic reasons जिसकी वजह से लोग पावर थेफ्ट करते हैं? First, the most important, which is to save their utility bills. अपने यूटिलिटी बिल्स को सेव कर रहे हैं। वो क्या करते हैं? वो अपने एनर्जी मीटर्स को करप्ट कर देते हैं। एनर्जी मीटर उतने एफिशिएंटली अपनी रीडिंग्स नहीं देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अपने अमाउंट को सेव करने के लिए पावर थेफ्ट करते हैं और गवर्नमेंट को रिड्यूस्ड बिल पे करते हैं। दिस इज़ अ वेरी कॉमन रीज़न जो कि हम और आप सब जानते हैं। नाउ अब यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे रीजंस पढ़ेंगे जो हमने बेसिकली ना तो कभी जाने हैं ना हमें पता है। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ अबाउट द पावर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़। अगर हम बात करते हैं उन इंडस्ट्रीज़ की जैसे कि स्टील, जहाँ पे स्टील की इंडस्ट्रीज़ सिचुएटेड होती हैं, वहाँ पे सिर्फ एक स्टील की इंडस्ट्री नहीं होती, वहाँ पे मल्टीपल स्टील की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। यूजुअली इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट लोग क्या करते हैं? पावर थेफ्ट करते हैं। बिकॉज अगर हम स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मेजर कॉस्ट होता है, बिकॉज जितना उनका इन्वेस्टमेंट होता है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो एक बेसिक कॉस्ट में ऐड अप होती है। तो इस वजह से अगर मार्केट में एक इंडस्ट्री कोई ऐसी है जो कि पावर थेफ्ट कर रही है और बाकी सब अपना बिल्स प्रॉपरली पे कर रहे हैं, तो उस केस में ऑब्वियसली जो पावर थेफ्ट कर रही है वो अपने फ़ायदे में है। अगर इतने बड़े लेवल पे पावर थेफ्ट होता है और हर एक इंडस्ट्री इस तरीके से पावर थेफ्ट करती है, देन इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो यूजुअली ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये अपने कॉम्पिटिटिव रेट्स को मेंटेन रखने के लिए, कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करने के लिए पावर थेफ्ट करती हैं। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेगुलेशन। What regulations we are talking about? We are talking about the regulations जब peak demands बहुत ज़्यादा हाई हैं इलेक्ट्रिसिटी की, और the regulations when the peak demand is very low। अगर ये दोनों सिनारियो होते हैं तो उस केस में लोग क्या करते हैं? पावर थेफ्ट करें। या तो डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है तो लोगों को एनर्जी नहीं मिल पा रही, डिमांड बहुत ज़्यादा कम है लेकिन हमें उस टाइम पे कनेक्शंस भी नहीं मिल रहे हैं, तो लोग पावर थेफ्ट करेंगे। और अगर हम रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं, दिस रिस्ट्रिक्शन इज़ रिगार्डिंग कि अगर हमें फैसिलिटी मिली ही नहीं है, अगर हमें फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो पावर थेफ्ट करना हर एक बंदे के लिए एक मजबूरी हो जाएगी, बिकॉज हर एक बंदे को अपनी नीड्स भी सेम टाइम पे फुलफिल करनी है। द नेक्स्ट थिंग इज़
टैक्सेस। अब टैक्स का क्या रोल है अगर हम पावर थेफ्ट की बात करते हैं? तो टैक्स तो हम लोग हमेशा पे करते हैं, इवन जब हम यूटिलिटी बिल्स पे करते हैं तब भी हम टैक्सेस पे करते हैं। तो हमने इन दोनों पॉइंट्स को अलग अलग क्यों मेंशन किया? यहाँ पे हम जिन टैक्सेस की बात कर रहे हैं वो बेसिकली हम पिच मिल्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं। ये जो पिच मिल्स होती हैं इनका काम क्या होता है? जब पिच मिल्स में हम लेबरर्स के चार्जेस पे करते हैं, यहाँ पे ये देखा जाता है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स एक दिन में कंज्यूम हुए। अगर हम टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स चेक करते हैं जितने कंज्यूम हुए होंगे, हम वो अमाउंट अपने लेबर चार्ज को देंगे, यानी कि जिसके अकॉर्डिंगली यूनिट्स का कंजम्पशन होगा उसके अकॉर्डिंगली हम अपने लेबरर्स को पर डे की वेजेस देंगे। अब अगर हम अपनी यूनिट्स भी रिड्यूस कर देते हैं देन इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि हम अपने लेबरर्स को चार्ज भी कम पे करेंगे। इन दिस केस द ओनर इज इन द प्रॉफिट इन अ टू वे, दिस इज अ टू वे प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ पे क्या होता है कि हम नंबर ऑफ यूनिट्स भी कम कर रहे हैं और हम लेबर्स को चार्ज भी कम दे रहे हैं, तो उनको दो जगह से प्रॉफिट हो रहा है। सपोज करिए कि हम नंबर ऑफ यूनिट्स को उतना ही रखते हैं, यानी कि हम गवर्नमेंट को अपना एक्चुअल चार्ज पे कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम लेबरर्स को भी अपने अपने एक्चुअल चार्जेस पे करेंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, जो ओनर्स होते हैं वो, अगर उनके लिए ये बहुत सिंपल मेथड है इसको रिड्यूस करना। अगर नंबर ऑफ यूनिट्स रिड्यूस हो जाती हैं तो उस केस में उनको टू वे प्रॉफिट हो रहा है कि उनको अपने लेबरर्स को चार्ज भी कम देना पड़ेगा, यानी कि लेबरर्स अपना फुल हार्डवर्क करके उनको प्रोडक्शन करके देंगे, बट द लेबरर्स आर नॉट गेटिंग द वेजेस। इन दिस इज द रीज़न कि जो ये लेबर क्लास पीपल होते हैं जो उनकी मजबूरी हो जाती है पावर थेफ्ट करना, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न। तो यहाँ पे टैक्सेस को सेव करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो लेबरर्स को कम चार्जेस पे कर रहे हैं। दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया इफ यू टॉक अबाउट पिच मिल्स। नाउ द नेक्स्ट इज डिले इन रिलीजिंग द पावर कनेक्शंस। ये बेसिकली इंडिया में उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, दिस इज़ बेसिकली इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, बट स्टिल देयर आर फ्यू एरियाज़ इन इंडिया जहाँ पे पावर कनेक्शंस आज भी रिलीज़ नहीं हुए हैं, आज भी वहाँ की पावर थेफ्ट से ही रन हो रही है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज that the people consider the power theft to be a white collar theft. What is a white collar theft? White collar theft एक ऐसा theft होता है जब सामने वाले को लगता है कि हम ये theft भी कर लेंगे और हमको कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो ये theft करते हैं then they are doing something very innovative. Innovative as in कि जब वो किसी भी मीटर की टैम्परिंग करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जब वो इस केस में थेफ्ट कर लेते हैं, they feel that they are able to cheat the government and they feel themselves as if they are successful in this stream. So I think this might be clear to you all. Now the next is laws. People have different perception about the laws. They feel that laws are always meant to be broken. उनको लगता है कि अगर हम laws को break करते हैं तो वो कोई इतना बड़ा offense नहीं कर रहे हैं, because the government is not taking the strict action against the laws. अगर कोई law को break कर रहा है तो उसके लिए हमें immediate action लेना चाहिए. We have the laws for power theft as well. But do you think कि हर एक जगह पे इन laws को obey किया जा रहा है? Not at all. Now the next is marijuana cultivation. marijuana cultivation के आप लोगों इसके बारे में आप सबने सुना होगा. इंडिया में marijuana cultivation बहुत ही हाई है. In this case यहाँ पे high intensity lightning की requirement होती है and you won't believe, according to NPCC the cultivation consumes 2000 to 3000 kilowatt hour of energy per pound of product. एंड दिस इज़ अ बिग नंबर. अगर हम marijuana कल्टिवेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे इतना वास्ट एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है एंड इट इज़ नॉट ईजी टू पे द बिल फॉर दिस एंड देयर इज़ नो चेक कि यहाँ पे जितना कल्टिवेशन हो रहा है लोग उतने बिल्स पे कर रहे हैं कि नहीं. इस वजह से लोग यहाँ पे पावर थेफ्ट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट important reason, during the festival season, not only during the festival season, during any occasion rather I would say, अगर कोई भी ऐसी
ओकेजन है जहाँ पे हमें इल्यूमिनेशन वर्क करना है, यानी कि हमें लाइट्स की इन्वॉल्वमेंट करनी है। तो लोग ऐसा फील करते हैं इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू दी अथॉरिटीज़ एंड नोइंग द प्रोसीजर कि इसको किस तरीके से हमें इसका लोड इंक्रीज़ करवाना है, दे थिंक दैट इट इज़ वेरी ईजी टू tap the lines than approaching to the power companies. And this is also the reason because लोगों को मालूम ही नहीं है कि अगर वो अथॉरिटीज़ के पास जाते हैं तो उन्हें किस तरीके का प्रोसीजर फॉलो करना है। उन्हें लगता है दैट इट वुड बी अ वेरी लेंथी प्रोसीजर जिसमें उनको बहुत टाइम लगेगा, नोबडी विल लिसन टू देम। इस वजह से वो क्या करते हैं, वो उनको ज़्यादा बेटर लगता है कि वो इन लाइन्स को टैप कर ले ताकि ईजिली उनका जो मोटिव हो वो भी फुलफिल हो जाए और उनको उसके लिए कुछ पे भी नहीं करना पड़े। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द हार्डवेयर हैकर्स। व्हाट डू हार्डवेयर हैकर्स डू? हार्डवेयर हैकर्स हैव द सिंपल माइंडसेट ऑफ टेम्परिंग द थिंग्स फॉर नो यूज़। उनका कोई मोटिव नहीं होता है टैम्पर करने के बाद, बस एक प्लेजर होता है जो उन्हें मिलता है व्हेन दे टैम्पर द थिंग्स। यानी कि प्रोफेशनली वो टैम्परिंग करने के लिए ही होता है, वो किसी चीज़ को हैक करने के लिए ही होते हैं, उसमें उनका कोई प्रॉफिट नहीं होता है, बस वो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन उनको देता है। सो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि लोग पावर का पिल्फरेज क्यों करते हैं, वाई इट इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर देम टू डू द पावर पिल्फरेज, doing the theft, and in spite of going to the authorities and paying the bills and getting the things done, because this is a more easier approach. So in future upcoming videos we will be discussing more about the power theft, how it is done, what are the procedures, log purane meters mein kaise power theft karte the, which were the mechanical meters, and how currently people are doing power theft, and what are the resolutions, what is the solution for the same, what are the measures which the government is taking to control the power theft, and how we all together can control the power theft. So stay tuned. Thank you.